Okay. Good afternoon, everyone. Today we are back again with one more webinar for a department for students. Today's theme is mobile video editing. I welcome you all on behalf of Department of Bachelor of Vocation in Mass Media, KTHM College, Nasik. Today we have Mr. Ankit Kurup, who is the resource person. He's brand manager at Great Ideas in Action. I'll just quickly share. So I hope now my screen is visible. Great Ideas in Action is a company in Nasik. It works in branding, digital marketing, employer branding, and customer experience, and more. It is based in Nasik, and it was started last year. So they partner up with other companies, other institutions, and then they do their digital marketing branding. So Mr. Ankit is working there as brand manager. That is, he handles multiple clients. He is a link between Great Ideas in Action and the team working in Great Ideas in Action. Under him, he have a lot of content writers, photo editors, video editors, um, graphic makers. Before joining Great Ideas in Action, he was working in Cineyug Mumbai for 3 years. Cineyug is a company which hosts IFA Award. I hope you all know about it. So he's someone who has a lot of experience in brand management, using Photoshop, using CorelDRAW, using Adobe Premiere Pro, and industry-oriented softwares. So just connect with them. Just connect with him. The students of second year already know him because he taught you script writing last semester. But for the first year and the third year, you don't know him. So just connect him through Great Ideas in Action. I'll also share his contact details at the end of the seminar. You can check their Instagram page. She's Mrs. Komal Somdani. She's the founder of Jia. So even some of you know this company because I shared a vacancy last semester. So there was vacancy. And those who want to do internship can contact him. Second year students already have internship this semester in digital marketing. So just go through this. Just go through their website and contact him. So handing over to you, sir. Thank you, Chaitanya. It was really a brief introduction talking about my journey, and it really feels happy to be a part of KTHM College and the work program. I am really grateful for this opportunity also. Plus, teaching is something that I genuinely love and I enjoy. I know the second year students have experienced it, so definitely we'll do some fun games and we'll try to interact much in this session. I don't want it to be a formal session because I feel creativity comes from every place, So guys, it's a humble request. If you can, just start your video, it would be appreciated. Like I can see you guys and we can interact. Also, when I call out your name or something like that, if I have some questions, what I can do is I can call out a name and then they can just talk to me or answer the questions. If they know, it's fine. If they don't, we are all in the learning phase. Some of you might know me, so they also know how fun it is. So should we begin? Yeah, at least someone can give me a thumbs up or like a wave, so that, or a yes, like unmute for a second and let's shout yes, so that I know that we are all geared up to do this. Yeah, we can begin.
Yes, sir, you can begin. Yes, sir. Oh, Harsh is also here. He's Hi, hello, the sir. master of photography. Yeah. Sir, glad to be attending your lecture. Same here. I'm glad you're here. Okay. So let's begin. I think then wait, let me just share my screen. Okay. Can everyone see the screen? Let's Yes, yes. point presentation. Yes, sir. Yes. So basically, there are a few concepts in terms of you know editing, and before understanding what editing is all about, we need to understand few basic concepts. ठीक है? मतलब इंग्लिश तो ठीक है, but I'll try and mix हिंदी ताकि हम लोग सब ज़्यादा बेहतर का समझ पाओ. ठीक है? Let's there are these are some few key elements in a smartphone or generic concepts that we need to firstly understand. So my question is to all of you guys, do you know what a frame is? Can anyone tell me what a frame is? It is aspect ratio, no, sir? Kind of 4:9 or something like that. Good, Shantanu. But no, it's not an aspect ratio. Aspect ratio is a different concept. Can Anish tell me what's frame? Yes, it's whatever you can see. It's a rectangle, but like not really a rectangle. It depends on aspect ratios in which you shoot. But basically, what you see. Exactly. Right now, what you're seeing, image, just a picture. It's a frame, and what a video is basically it's multiple frames clubbed together to form a video, right? There are multiple images. हम लोगों ने वो बचपन में ड्राइंग की थी, जहाँ बुक के कॉर्नर में हम लोग वो स्माइली बनाते थे, एक सैड सा स्माइली, और हर पेज पे उसको थोड़ा 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 करके हम लोग हैप्पी करते थे. And when we used to flip that book, it used to animate, right? Videos work in the same way. So frames होते हैं, हर फ्रेम को आप जब क्लब करते हैं तो वो एक वीडियो बनता है, right? I hope I'm very clear. So let's move to the next point, that is frame rate. Okay, now we understood what frame is. Frame is an image. Now frame rate is basically when you club these frames in a second. Okay, so for example, आप जब स्मार्टफोन से शूट करते हो आपके, ठीक है, तो एक नॉर्मल फ्रेम रेट होता है 30 fps का. 30 fps is frames per second, यानी आपके वीडियो के एक सेकंड में आपको 30 फ्रेम्स मिल रहे हैं. सो आपका कोई भी स्मार्टफोन कैमरा will shoot by default on 30 frames per second. ठीक है? Even videos which you watch on YouTube or TikTok Reels, they're usually shot on 30 frames per second. But definitely उसको हम लोग change कर सकते हैं. So if you watch a film, if you go to watch a film, they are shot in 24 to 25 frames per second because it slows down the film and it gives the cinematic look. If you go to see a slow motion or a fast, if you want to shoot like that, then there are 60 frames per second. यानी उसमें ज़्यादा image club किया जाता है एक वीडियो बनाने के लिए. Okay, so can someone tell me what's the resolution? Anuj. Quality of a picture, sir. Can you tell me what's a resolution? Can anyone tell me what's a resolution? Okay, basically resolution. Maybe quality of picture. It's more like pixels जो आपके dots होते हैं ना screen पे. There are multiple dots जो एक picture को form करते हैं. ठीक है, तो resolutions are basically हम लोगों ने बहुत बार देखा है ये 720p, 180p, 1080p, sorry 180p, 1080p, then there is 4K, then 2K. ये सारी हम terminology सुनते हैं लेकिन हमें actually पता नहीं होता. This is basically a resolution. ठीक है, usually जो आपके smartphone videos है और YouTube videos है,
they are shot in 1080p. 1080p मतलब 1920 into 1080 पिक्सेल्स, ठीक है. ये पिक्सेल्स आर डॉट इन योर फ्रेम, तो वैसे वो फॉर्म होता है. 4K इज डबल HD quality. तो ये HD, full HD, all these things are resolutions. Aspect ratio is again an important key, कि ये जो रेजोल्यूशन है उसका एक रेशियो होता है जिससे हमें एक स्क्रीन में दिखता है. तो पहले की जो टीवीज थे वो एस्पेक्ट रेशियो में थे 4:3 के, राइट. तो वो हमें एक ऑलमोस्ट स्क्वायर दिखता था ओल्ड टीवी फॉर्मेट. अभी यूट्यूब का जो फॉर्मेट है, ठीक है, इट इज 16:9, 16:9. इवन आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का वही स्लाइड साइज रहता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है. अगर आप रील्स की बात करते हो तो ये जो स्मार्टफोन का ये जो वर्टिकल साइज है ये होता है 9:16, और ये है अगर आप हॉरिजॉन्टल बात करते हो तो वो 16:9 होता है. तो ये आपको एस्पेक्ट रेशियो समझा. एस्पेक्ट रेशियो इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द वे यू आर शूटिंग इट डिपेंड्स ऑन इट. यूजुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है कि हम लोग शूट करते हैं 4K में, एंड वी यू नो व्हाट वी डू इज 4K 8K में हम लोग बड़े बड़े फिल्म्स शूट करते हैं, एंड देन वी कन्वर्ट दोज फुटेजेस टू 1080p using tools like Handbrake. Handbrake is a free video conversion software, so you should make a note, कभी आप लोगों को काम में आएगा. It is on your system, like PC पे work करता है वो. But Handbrake is a definitely very good open source tool जिससे आप videos convert कर सकते हो कोई भी format में. I will not go in detail कि उसमें encoding क्या होता है. मतलब there are other types of footages. मतलब जब भी हम लोग shoot करते हैं तो वो raw shoot होता है, ठीक है, और रॉ को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है एक तो MP4 में, which is a standard format for open source, या Google, everyone uses MP4. All our videos are usually shot in MP4. But if you see Apple वाले जो movies होते हैं ऐसे कुछ होते हैं तो वो MOV होता है. There are other formats called MKV. So there are different types of formats basically जो you know size को represent करते हैं, उसको formatting को represent करते हैं और उसका codec represent करते हैं. I will not go that deep, but let's talk about these camera related terms. Can anyone tell me what is shutter speed? Let's talk about shutter speed. I think Harsh can tell us about shutter speed. It is basically the speed at which you can freeze the motion of the image or any object, and as well you can also control the light entering the camera with shutter. Exactly. तो शटर स्पीड से आपका होगा क्या कि जो आपके अगर आपके फोन में या DSLR के कैमरा में एक शटर होता है जो कैप्चर कर सकता है लाइट एंटर करने के लिए. तो जितना ज्यादा आपका शटर स्पीड फास्ट होगा उतना कम लाइट एंटर करेगा आपके इमेज में. जितना ब्रॉड आपका शटर स्पीड होगा उतना ज्यादा आपका लाइट एंटर करेगा आपके शॉट में. सो अगर मैं 3 सेकंड्स का शटर स्पीड रखता हूँ या 30 सेकंड्स का शटर स्पीड अगर मैंने गलती से भी रख दिया तो मेरा पूरा इमेज वाइट आएगा. इट विल टेक सो मच टाइम टू यू नो डेवलप दैट. आपने अगर ऐसे कुछ इमेजेस देखे होंगे जहाँ पे यू नो दे टेक अ फायर स्टिक और या टॉर्च का लाइट जिससे वो एक ऑरा अपने अराउंड क्रिएट करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर डेवलप्ड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज लाइक मतलब फंक्शंस लाइक शटर स्पीड, योर ISO and your exposure values basically. So let's talk about exposure. Exposure is again light, कि आपका light आपके कितना आ रहा है, ठीक है. How is your ISO is basically your sensor to accept that light. So अगर आपने देखा होगा ISO का कुछ range होता है 100 से लेके तो मतलब lakhs तक जाता है वो, depending on the special cameras. हमारे स्मार्टफोन्स में यूजुअली वो 3000 6000 तक उसकी ISO की कैपेबिलिटीज होते हैं. तो ISO इज बेसिकली जितना कम ISO होगा उतना डार्क होगा, ठीक है. अगर आप ब्राइट लाइट में हो, डे में हो तो ISO कम रखो. अगर आप यू नो नाइट मोड में हो या आप नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो या नाइट में शूट कर रहे हो या इंडोर शूट कर रहे हो तो आपको ये ISOs मेंटेन करने होते हैं, बैलेंस करना होता है कि आपका लाइट फिगर आउट करना होता है. ठीक है. देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक वाइट बैलेंस एंड एवरीथिंग, बट वन मोर important is aperture. ठीक है. Can someone else tell me what is aperture? प्रणीता बोरसे, आप बता सकते हो aperture क्या है?
एनीवन, सुमित, सोना ने एनी गेसेस अपर्चर के बारे में? Aperture affects the depth of the field, f1, that is shallow, और अगर अपर्चर का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है ना, तो हमें अपने आंखों को देखना चाहिए, ठीक है? अगर आंखें एकदम छोटी कर दोगे तो लाइट बहुत कम पास होगा, राइट? अगर आप अपने आंखें बड़े कर दोगे तो लाइट काफी ज्यादा पास होगा, बराबर? यू कैन सी मोर क्लियरली, यू कैन सी दैट इट इज आल्सो रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ फील्ड। बेसिकली अपर्चर का जो नंबर होता है, सो इफ इट इज 1.4, तो आपका जो लेंस का अपर्चर है दैट इज बिग इनफ ताकि ज्यादा लाइट पास हो। अगर अपर्चर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो द नंबर, सो इफ इट्स अपर्चर 4, इट्स अपर्चर 6, तो वो एफ स्टॉप्स होते हैं, इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू योर कैमरा लेंस, ठीक है? अब उसमें अलग अलग लेंसेज हैं, जूम लेंस है, बट हम लोग इतना टेक्निकल ना जाते हुए मैं आपको ये सारी चीजें ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एंड यू कैन प्ले विद दीज थिंग्स टू मेक योर वीडियो वेरी गुड। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, फोन से वीडियो एडिट करना या शूट करना, इट इज ऑल अबाउट जुगाड़, ठीक है? हमारे पास DSLR में बहुत सारा कुछ मटेरियल होता है शूट करने के लिए, बट फोन से जब हम लोग करते हैं तो हमें जुगाड़ करना पड़ता है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, और आउटपुट भी अभी हमें मैच करना है टू द क्वालिटी कंटेंट ऑफ DSLRs एंड एडिटिंग कंटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक Adobe Premiere Pro एंड एवरीथिंग। सो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट application part of this. I want you guys to note this slide down, ठीक है? These are all the softwares that are responsible for editing. जो येलो में है वो सारे वीडियो एडिटिंग के लिए है, जो व्हाइट में है बेसिकली दे आर इमेज एडिटिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। सो ओपन कैमरा इज अगेन एन ओपन सोर्स कैमरा एप्लीकेशन, जहां पे यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई टॉक्ड अबाउट, ठीक है? वहां पे आप अभी क्या होता है कि जब डिफॉल्ट आपका फोन का कैमरा है, उसमें यूजुअली तो आप सिर्फ ऑटो मोड में डाल के सिर्फ वीडियो में जाके क्लिक कर देते हो, ठीक है? बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली लॉक द फोकस या वो एक्सपोजर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है कि जब आप वीडियो लोगे एक्चुअल में, ठीक है, और अगर आपने एक्सपोजर और इसको लॉक नहीं किया फोकस को, तो आपको वो कंटिन्यूस वो इफेक्ट दिखता रहेगा जहां पे आपका कैमरा फोकस करने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, और इन रियल सिनेरियोस आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करता रहेगा, राइट? वो बात करते वक्त मूव कर सकता है, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, आपको चीजें दिखानी है, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा कि आप फोकस कैसे लॉक कर रहे हो और एक्सपोजर उसका क्या कर रहे हो। अब एक्सपोजर अगर आप लॉक कर देते हो ना, तो सपोज एक सडन लाइट आता है आपके कैमरा पे, तो वो ट्राई करेगा कि वो कैमरा ही ट्राई करेगा और सॉफ्टवेयर ट्राई करेगा कि आपका एक्सपोजर ज्यादा ना हो जाए, मतलब आपका सडनली कैमरा या फुटेज एकदम वाइट ना हो जाए। वो ट्राई करेगा कि वो लाइट को वो कंट्रोल करे उसी सेटिंग पे, ठीक है? अगर लेकिन आप ये सेटिंग्स लॉक नहीं करते, तो अगर कोई सपोज कार पास हो रही है और उसका लाइट ऑन है, तो वो लाइट आपके वीडियो पे फ्लैश होगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी एक बार प्रैक्टिस करके, कि आप अपना वीडियो को कैसे परफेक्ट बना सके, ठीक है? स्नैपसीड इज फ्रॉम गूगल, ये एक फोटो एडिटिंग ऐप है। लाइटरूम इज फ्रॉम एडोबी, इट इज ऑल्सो एडिटिंग ऐप फॉर फोटोज, बेसिकली रीटचिंग ऐप है। इसमें आप अपने जो एक्सपोजर अगर आपने सपोज ज्यादा रख दिया, तो आपके फुटेज में ग्रेन्स आ सकते हैं, तो ये ग्रेन्स को मतलब सॉफ्ट कर सकता है, स्मूथ कर सकता है। जो आपके जो दूसरे फंक्शंस है एक एडिटिंग ऐप में, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग इन सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली पिक्सआर्ट और कैनवा दे आर माय फेवरेट, बिकॉज इसमें जुगाड़ हो सकता है, ठीक है? टू क्रिएट पोस्टर्स, टू क्रिएट स्टिकर्स, these are the best softwares. Now I'll show you a demo of Canva. Let me know if my screen is working. ठीक है, तो कैनवा सबने यूज किया है? कभी किसी ने यूज किया है? किसी को पता था कैनवा? यस, मैंने किया है सर जी। यस, तो कैनवा इज बेसिकली अ टूल, ये आपके फोन में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड, एप्पल, सब जगह आपको ये मिलेगा।
कैनवा से आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, बी इट प्रेजेंटेशन, ब्रोशर्स। आपको यहाँ पे अगर आप क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ दिखेगा। अगर आपको रेज्यूमे बनाना है, लोगो बनाना है किसी कंपनी का, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा विथ गुड टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स। आप उनको यूज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। सो लेट्स सी, अगर मुझे एक न्यूज रिपोर्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो आई जस्ट टाइप न्यूज रिपोर्ट and let's see what I can find. तो मुझे ऐसे कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, देखो, Pulse, these are almost like a magazine cover and I can just click on them and edit them easily, right? और basically templates का advantage क्या होता है कि templates give you like a ready-made dish, ingredients आपको दिया जाता है, आपको सिर्फ उसमें थोड़े बहुत tweaks करके आपका dish ready करना है. So it's that easy while using Canva. Now I see this and I want to edit this, but इसमें आप background देख रहे हो कि ये background एक image है किसी US lady का, but I want to replace it with my image. I want to, you know, make a topic for my editing. So suppose मैं आज ये जैसे रिपोर्टिंग डेली है, मैंने डेली रिपोर्ट्स करके एक मेरा एडिटिंग का रिकॉर्ड करके मैं डेली रिपोर्ट्स डालता हूँ कि आज मे बी कोविड के केसेस कितने हुए हैं, शॉर्ट हाइलाइट्स ऑफ न्यूज. सो आई विल ट्राई एंड चेंज दिस नेम टू रिपोर्ट्स. मुझे यहाँ से भी मैं रीनेम कर दूंगा रिपोर्ट्स. बेसिकली नेमिंग कल्चर आप अपने हिसाब से कर सकते हो. यहाँ पे विद रूबी को मैंने इजीली चेंज कर दिया टू राइट. सो यू सी कितना इजी है इसको एडिट करना. जस्ट आपको टैप करना है और अपने हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी. अगर आपको अपना खुद का लोगो अपलोड करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अपलोड, ठीक है, या तो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल टू अपलोड और आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो. बट लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट एप्लीकेशन कॉल्ड पिक्सआर्ट. क्योंकि मुझे अभी सपोज मैंने एक वीडियो लिया, ठीक है, और वीडियो के बाद मैंने एक फोटो लिया जिसके साथ में वो वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ. किसी को अमृता पवार पता है? अमृता पवार वसंत पवार की बेटी है एंड शी इज अ पॉलिटिशियन. शी इज आल्सो वर्किंग इन गोदावरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, वो हमारी एक क्लाइंट है. और आज वीडियो एडिटिंग में वील ट्राई एंड यूज हर फुटेजेस, ठीक है, टू शो यू हाउ वीडियो एडिटिंग शुड बी डन. Right, so let's jump into PicsArt. अब मैंने ये emulator install किया है because I cannot show my phone, so just to, you know, share my screen and show how to work on these softwares, I've installed this. I hope आप सबको दिख रहा है screen. You just go to continue to PicsArt app. PicsArt भी I think Apple में available है. अगर इसको problem होगा, you guys have to try these softwares out because only then you know, you'll be able to master it. और कोई एक दिन में नहीं आता है. You have to, you know, spend a lot of time researching on it. अब जैसे ये कुछ ऊपर आपको दिख रहा है, these are all remixes, photos, filters already available होते हैं. So we just close this down. So when I want to start a new project, I will click on the plus icon, ठीक है. उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो एडिट करना है, कोलाज बनाना है, बैकग्राउंड्स के साथ काम करने हैं, तो वैसे आई कैन चूज. नाउ आई वुड वांट टू एडिट अ फोटो. ओके, सो अभी मैंने यहाँ से मेरा फोटो सेलेक्ट कर दिया. एड्स तो डेफिनेटली पॉप अप होने ही वाले हैं बिकॉज़ इट्स द फ्री वर्जन. या सो या एज यू कैन सी हियर मेरे फोटो टूल ओपन हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे सारे मेरे फंक्शनैलिटीज और टूल्स अवेलेबल है. सो इफ आई क्लिक गोल्ड इज फॉर प्रीमियम, वी डोंट हैव टू क्लिक देयर, बट इफ यू क्लिक ऑन टूल्स you can see many more tools, things like you can flip and rotate, you know, rotate the image. यहाँ से आप टिक करोगे तो फिर वो सेव हो जाएगा. there are things like crop. अब जैसे मैंने एस्पेक्ट रेशियो की बात की, आपको यहाँ पे पूरे एस्पेक्ट रेशियोज दिख जाएंगे. इवन आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रिलेटेड एस्पेक्ट रेशियोज मिल जाएंगे. सो एग्जांपल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फेसबुक कवर, तो आपका ये फेसबुक कवर का साइज है. इफ यू आर क्रिएटिंग अ ट्विटर पोस्ट, सो इट इज दिस साइज. अगर मुझे यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट करना है तो दिस इज द यूट्यूब वीडियो साइज.
राइट. सो मैंने सपोज ये YouTube वीडियो साइज दे दिया, इवन YouTube वीडियो साइज 16:9 रेशो यहाँ पे इन्होंने एस्पेक्ट रेशो दिया है. दिस वाज द ओल्ड TV साइज 3:4. ठीक है, let's select 16:9. Let's select my image here in the center and I am saving it. Okay, now what I want to do is I want to remove this background. अब जैसे मैंने कहा कि all these apps are giving us the power to do things very quickly. अगर मैं फोटोशॉप में होता तो मैं पेन टूल या सिलेक्शन टूल से मैं पूरे अपने आउटलाइन को सेलेक्ट करता एंड देन मैं अपना स्टिकर कट आउट करता. बट यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कट आउट. ठीक है, आई जस्ट क्लिक ऑन कट आउट और वो मुझे बोल रहा है कि आपको क्या कट आउट करना है. क्लोथ, स्काई, हेड, हेयर, बैकग्राउंड, पर्सन. आप आउटलाइन पे सिलेक्ट करके खुद भी यू कैन डू दैट. ऐसे भी आउटलाइन में सेलेक्ट करके कर सकता हूँ. बट अभी मुझे पूरा का पूरा पर्सन सेलेक्ट करना है और बैकग्राउंड कट करना है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट द पर्सन. ठीक है, एंड इट विल डू इट्स मैजिक. नाउ यू कैन सी ये हाईलाइट हो चुका है. ये हाईलाइट इसलिए हुआ है कि ये रिफाइन अगर हमें करना है तो हम लोग और उसको कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं कि उसका कैसे कट आउट हुआ है. एंड देयर आर सम रिफाइनमेंट्स आई कैन मेक हियर. अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो ये इरेज हो जाएगा. बट इफ आई वांट टू रिस्टोर आई कैन क्लिक हियर एंड रिस्टोर देम. ठीक है, देन अगेन इरेज करके हमें एकदम ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जांपल. इफ आई क्लिक ऑन सेव, उतना वो बैकग्राउंड कट करके एज अ पर्सन मुझे फोरग्राउंड में सेपरेट करेगा. इट विल क्रिएट डिफरेंट लेयर्स. यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड बटन दिख रहा है, यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ. ठीक है, दिस विल बी सेव्ड इन माय गैलरी. सिमिलरली इफ आई वांट टू डू इफेक्ट्स, ठीक है, आई कैन पुट इफेक्ट्स लाइक देयर आर मल्टीपल इफेक्ट्स. ठीक है, यू गाइस कैन ट्राई दीज इफेक्ट्स इफ यू वांट, बट आई मीन इट इज नॉट दैट रिकमेंडेड. कुछ कुछ इफेक्ट्स फ्री होते हैं, कुछ कुछ पेड होते हैं, तो डोंट क्लिक ऑन द पेड वंस. ट्राई सर्टेन इफेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं मोशन दिखाना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट. इफ आई वांट टू क्रिएट समथिंग राइट, लेट्स सी मैजिक. आई मीन यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन दिस. ठीक है, बट यूजुअली आई वुड रादर टेल यू दैट go to what do you call that, save this. If you want to tune your footage or your image, all you have to do is go to tools and where was that? So all you have to do is go to, there is some auto beauty stuff and everything. Yeah, go to beauty and do auto and it will find the highlights and the shadows and it will try and fix them. मेरे इसमें ये emulator है, so it's crashing a bit, but ठीक है, you get the point, right? So let's move back to Canva. Okay, now I want to change the background of this image, so I delete it. अभी suppose मेरा interview था about a farm, maybe it is a corporate interview. So what I will do is I'll search, go to elements or background. I can click on background, I can search corporate. ठीक है, तो मुझे वो corporate के background देगा या buildings. ये ऐसे उसने कुछ backgrounds मुझे दिए हैं. Okay, so let's pick whichever background I like. I can let's select the first one. So you can see right now the background is here. Okay, I can just change the color of my text. यहाँ से I can select it to black. And the text is black. Daily reports को भी I can यहाँ से उनके left align, center align ये सारी चीजें मैं change कर सकता हूँ. I will take it to the right. Okay. अब मुझे अगर इसमें भी effect देने हैं तो मैं copy paste कर सकता हूँ. यहाँ से मैंने क्या किया, Control C, Control V. आपके फोन में ऑप्शन होगा डुप्लीकेट कर, वो मैंने कलर कर लिया ब्लैक, तो वो एक शैडो इफेक्ट आ रहा है उसके साथ. ठीक है, अब मैं अगर इमेज के साथ कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे बहुत सारे इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स और फिल्टर्स दिख रहे हैं. फिल्टर्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे भी यूज किया होगा, टिकटॉक पे भी यूज किया होगा, जहाँ पे आपके बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, देयर आर इफेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई.
So यहाँ से ही pre-made कुछ filters हैं which we can apply. These all are free. So summer, if you want to do a black and white or something like a grayscale drama, these are all effects you can try. ठीक है, effects में भी you can go and try this. Like bad TV में आपको जैसे scan की जो old TVs के जो lines आते थे वैसे आपको दिखेंगे. There are other effects we can try, but I usually just adjust my picture. तो यहाँ पे कुछ main settings हैं यहाँ जो आपको आपके फोन में भी दिखेंगे. तो यहाँ से मैं अपना ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मुझे यू नो एनीथिंग, एनी रिपोर्टिंग, एनी वीडियो, इट इज अबाउट दीज 3 मेजर थिंग्स. फर्स्ट इज योर फुटेज इटसेल्फ. ठीक है, द वीडियो, द टाइप ऑफ वीडियो यू आर मेकिंग. सेकंड इज द ऑडियो, एंड द थर्ड इज बेसिकली दीज इमोशंस थ्रू कलर्स. Right, everything is about emotions. आपने देखा होगा अगर let's see politicians, अगर हम लोगों को भगवा कलर पता है, orange represents energy, right? Blue calmness, it represents cool. Red, अगर आपने कभी मर्डर रिपोर्टिंग देखा होगा, ठीक है, तो मर्डर की रिपोर्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा हमेशा वो रेड कलर का बैकग्राउंड यूज करते हैं. ठीक है, उसमें ही वो सस्पेक्ट दिखाते हैं एकदम ब्लैक में. तो all these colors are represented and used to target our mind. So it is very simple. वैसे ही हमें चीजें यूज करनी है, हमें अपने मन में रखना है कि ओके मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं कॉर्पोरेट रखना चाह रहा हूँ तो मैं थोड़ा ग्रे रखूंगा. ठीक है, यहाँ से मैं ब्लर कर सकता हूँ उसके इफेक्ट्स को. राइट, अभी जो मैंने वहां पे स्टिकर पिक्सआर्ट में कट आउट किया था, अब मैं वो स्टिकर यहाँ पे ऐड कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरा स्टिकर ऐड हो चुका है, एंड इसको भी मैं यहाँ से फ्लिप कर सकता हूँ ताकि it will look good. So this gives a cover photo for my video. अब usually जब आप वीडियो एडिट करोगे तो आपको एक कवर फोटो चाहिए होता है, एक थंबनेल चाहिए होता है जिसको आप YouTube पे अपलोड कर सको. तो you can always try using these softwares to take a cutout and build your own thumbnail. So ऐसे आप इसमें कर सकते हो. Now let's move on to the application I was here to teach you guys today. It's called UCut. ठीक है, UCut से पहले I need to tell you some basic things about video editing, some key elements. ठीक है, हमने इमेज देखा, फुटेज टाइप देखा, वो 4K है या 2K है या जैसे उसका रेजोल्यूशन है वो देखा हम लोगों ने. बट वीडियो एडिटिंग में ना ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है. सो प्रोजेक्ट, what is a project? A project is whenever you start a new project and you open an old project. ठीक है, तो जो भी आप काम करते हैं उसको प्रोजेक्ट बोलोगे. The timeline. Now timeline is basically when I click here, it makes my new project. Okay, I can just click on the plus sign. I can choose which video I want to edit, and it will take me to that video. तो आप ये जो नीचे देख रहे हो ना, this is called a timeline. ठीक है, यहाँ से मैं फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितना पोर्शन मुझे एडिट करना है मैं वो एडिट करूँ. अभी बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट फ्रेम है ना, फर्स्ट फ्रेम यशोगाथा विद अमृता पवार, ये हम लोगों ने एडिट किया है. फोटो क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक सर्कल लिया, उसका ओपेसिटी हमने थोड़ा रिड्यूस किया. फिर मराठी में अगर हमको टाइप करना था तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे मराठी टाइपिंग के लिए हमें फॉन्ट्स नहीं है, तो हमने क्या किया, गूगल पे टाइप किया फॉन्ट, गूगल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया यशोगाथा. यहाँ पे भी कुछ सर्कल के फ्रेम्स दिए हैं, और हम लोगों ने ये फार्मर के जो प्रोडक्शन है उसके जो क्रॉप्स थे वो यहाँ पे डाले हैं. तो अगर किसी को पता होगा, ये महेंद्र निकम है, इन्होंने क्या किया है कि ये पर्पल और येलो कलर के उन्होंने फूल गोभी ये लॉन्च किए थे, मतलब क्रॉप ग्रो किए थे. इट वाज ग्रोइंग आउटसाइड महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र में ये काइंड ऑफ फर्स्ट है. And he really did a lot of profit. He made a lot of profit. और ऐसे बोलते हैं कि these flowers they have a lot of potassium and calcium in it. तो ऐसे कुछ elemental changes थे उसने जो ये innovation किया. So Amruta Tayi is always helping these people, trying to find ऐसे unique लोग जो innovation करते हैं और उनके ही वो interview लेते हैं. तो ये सारा कुछ हम लोगों ने फोन पे शूट किया है, एडिट भी फोन पे ही किया है. So I'm teaching you how you can do it.
ठीक है, ये अभी हमारा फुटेज है। आप लोगों को फुटेज की आवाज आ रही है? कैन समवन जस्ट गिव मी अ हेड्स अप कि मैं बहुत देर से बात कर गाइस? नहीं, I don't think so. Is the footage playing though? क्या अभी I'm playing. No, we can't hear it. I don't think we'll be able to hear it. अच्छा, no problem. It's on a different app and that go under an emulator and that कोई बात नहीं, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे फुटेजेस ट्रिम करने हैं तो मैं यहाँ से उसको ट्रिम कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इतना ही सेलेक्ट करता हूँ जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। आई विल हिट, आई कैन सेलेक्ट मल्टीपल फुटेजेस ऑल्सो। ठीक है, मैंने ये 2 फुटेजेस सेलेक्ट कर लिए, ये तीसरा भी फुटेज सेलेक्ट कर लिया। ऐसे तीनों फुटेजेस सेलेक्ट करने के बाद व्हेन आई हिट द नेक्स्ट एरो इट विल टेक मी टू माय टाइमलाइन। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, क्लिक द थंबनेल टू ओपन क्विक मेन्यू। ये क्विक मेन्यू आपको बताता हूँ, बट ये जो नीचे जो है ये आपका टाइमलाइन है। इफ आई हिट प्ले बटन इट विल प्ले ऑब्वियसली। ठीक है, लेट्स सी ईच टूल थोड़ा डिटेल में। ट्रिम से हम चीजें छोटे या बड़े जो कर सकते हैं। अभी यूजुअली फुटेज स्टार्ट करने से पहले कोई वॉक कर रहा होता है या एक्शन बोला होता है या ऐसी चीजें होती है तो वो हम लोग ट्रिम कर देते हैं इसमें। तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड से ट्रिम कर सकते हैं उसको। कट इज बेसिकली आपको बीच में का अगर कुछ फुटेज है जो डिलीट कर देना है कंप्लीटली, तो आई कैन जस्ट स्लाइड दैट एंड स्लाइड दिस और वो बीच में का फुटेज कट हो जाएगा। अगर मुझे स्प्लिट करना है तो आई कैन टेक दिस पॉइंट wherever I want to split that particular footage into 2 sections. अभी ये क्यों यूज करना है हमें? तो सपोज कोई ट्रांजिशन है, आपने वीडियो तो शूट कर लिया, वीडियो शूट करते करते आपने मतलब सपोज आप इंटरव्यू ले रहे हो अमृता ताई का एंड आई वांट टू शो दैट फ्लावर द प्रोडक्ट द कॉप। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसको नीचे क्रॉप पे लेकर जाऊंगा बराबर। बट यहाँ पे मैं अगर वो स्प्लिट करूँ इमेज को तो I can add a transition later on over here. So right now I just hit split. तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 फुटेज के सेक्शंस हो गए हैं और I have to just select a bigger footage. ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी स्प्लिट दिया था तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिट के लिए एक सिंबल आ गया है। यहाँ पे 2 फुटेजेस हो गए, ये फुटेज 1 है, ये फुटेज 2 है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्प्लिट। हम लोगों को समझ गया। स्पीड इज अगेन अ टूल जिससे मैं मेरे वीडियो को फास्ट या स्लो कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा टाइम है, अगर मुझे फास्ट करना है तो आई विल जस्ट टेक इट टू 4 सेकेंड्स। ये हमें कब करना है, जहाँ पे मूविंग सीन्स है, जैसे आपने एक एस्टैब्लिशमेंट शॉट ले लिया जहाँ पे सपोज या एस्टैब्लिशमेंट शॉट, यानी अगर आप सपोज फार्म में हो, ठीक है, तो मैंने उसका सराउंडिंग ले लिया है। अब जब मैं सराउंडिंग शूट करूंगा तो वो तो एकदम नॉर्मल फुटेज पे शूट होगा, मतलब आपके क्रॉप्स है, आपका स्काई है, द ट्रीज एंड एवरीथिंग, आई शॉट दैट। बट अभी मुझे उसको फास्ट करना है। मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता पूरा एरिया दिखाते हुए या एस्टैब्लिश करते हुए कि हमारा ये सीन कहाँ का है। तो इवन इफ यू शूटिंग मुंबई तो आपने जस्ट स्काईलाइन ले लिया या थोड़ी शॉट्स ले लिया, उसको आप यहाँ से फास्ट या स्लो कर सकते हो फुटेज को। ठीक है, 1x इज द नॉर्मल, कीप इट 1x राइट नाउ। ठीक है, वॉल्यूम इज टू कंट्रोल द वॉल्यूम। अगर आप मल्टीपल फुटेजेस के साथ काम कर रहे हो या आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल रहे हो, तो अगर मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो मैं इसका वॉल्यूम ही कम कर दूंगा पूरा, ताकि जो रिकॉर्डेड ऑडियो है मेरा, दूसरा जो रिकॉर्डर से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो मैं इस पे ऐड कर सकूं एंड इट विल वर्क। अगर डिलीट करना है मुझे, देखो ये भी आपको सजेशंस और ट्यूटोरियल्स देगा कि आप कैसे जूम करना है या जूम आउट करना है। और टाइमलाइन का अगर आपको एक एक फ्रेम देखना है तो आप जूम कर सकते हो। ठीक है, या डिलीट इज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर क्लिप एंड डिलीट दैट। क्रॉप से आप अपने जैसे जो हम लोगों ने फ्रेम्स देखे, तो आप वो फ्रेम्स और एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट हमेशा स्क्वायर में जाते हैं और उसका टाइम लिमिट है 1 मिनट का।
स्क्वायर या 4:5 में जा सकते हैं। अगर 1 मिनट से अगर आपका फुटेज ऊपर जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू यूज 16:9 या 9:16। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। अगर आपका कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो विद 16:9। दिस इज द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, क्रॉप आपको समझा। रिवर्स इज यूज्ड टू दिस एप्लीकेशन, ठीक है, रिवर्स इज यूज्ड टू रिवर्स द फुटेज, और वो आवाज भी पूरी तरह से उल्टा कर देगा। तो these are some tools which you can use. I think enough to start this application here. I hope I am clear जब तक इस चीजों को समझ में आ रहा है। Guys, let's talk. Prajwal, can you unmute your mic? कौन है लेक्चर में? प्रमोद, समीक्षा, तो म्यूट करके चले गए क्या कहीं? नहीं सर, है ना। नो सर, वी आर देयर। ओके, तो समझ में आ रहा है सागर? यस सर। ओके, कुछ डाउट्स, किसी को कोई क्वेरी अभी तक? Is it easy to understand, easy to follow? किसी को कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्टली। ओके, चलेगा। Let's work on the project again. हम थे रिवर्स पे। अब copy is to again copy certain elements. Rotate is to rotate the footage. आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। Sort is easy way to change the sequence of your footage. तो अभी अगर सपोज ये फुटेज मेरे को एंड में डालना है तो मैं एंड में लेकर जा सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट हिट ओके। सो अभी क्या होगा कि वो फुटेज एंड में चला गया है एंड आई हैव अदर फुटेजेस इन द स्टार्ट, इन द बिगनिंग। ठीक है, तो ऐसे आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट मी जस्ट टेक दिस टू द स्टार्ट, राइट। अब मेन इफेक्ट्स और म्यूजिक इसमें आते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड से भी अगेन आई कैन जस्ट चेंज द बैकग्राउंड, जो एस्पेक्ट रेशियो, या अगर हमें कलर करना है। अभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग स्क्वायर में या ऐसे वर्टिकली शूट कर लेते हैं, तो हमें बैकग्राउंड चेंज करना होता है, तो हम लोग बैकग्राउंड का कलर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इफेक्ट्स टैब में। अब इफेक्ट्स डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कंप्लीटली। सी ऑल दीज थिंग्स ना, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी गट फीलिंग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पे देयर आर सम इमोशनल मोमेंट्स, आई कैन यूज बीट्स। नाउ हार्ट बीट क्या होगा, आपका फुटेज जूम इन जूम आउट करेगा। सो आप ये इफेक्ट देख रहे हो, तो ये इफेक्ट हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे अगर मुझे कहीं एम्फेसिस देना हो। ठीक है, यहाँ मेरा डांस वीडियो है, यूजुअली आई शूट, तो वहां पे अगर मेरे कुछ स्टेप्स हैं जहाँ मुझे पावर या इम्पैक्ट दिखाना है, तो वहां पे मैं ये सारे फुटेजेस यूज करता, मतलब ये इफेक्ट्स यूज करता हूँ। सपोज एक मर्डर सीन आप रिपोर्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ है जहाँ पे वो क्राइम होते हुए अगर आप शॉट कर रहे हो, तो यू कैन यूज दीज इफेक्ट्स। बट अगेन आई विल टेल यू, इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, तभी हम लोग ये इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे इफेक्ट्स हैं जैसे जूम इन। अब ये जूम इन मैं कब दूंगा, जब मुझे एक नया एलिमेंट या एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है मेरे स्टोरी में, या कोई ट्रांजिशन हो रहा है टू अनदर फुटेज या टू अनदर एरिया और समथिंग, और डिफरेंट रिपोर्टर, तब मैं ये सारी चीजें effects use कर सकता हूँ। So there are multiple effects. I want you guys to try these effects out on your videos, and only then you'll be able to understand. Okay, now coming to filters. Filters are quick fix to change the way your footage is looking. Okay, so अगर मैं ये color corrections जैसे हमारे Premiere Pro में होते हैं या ऐसे चीजें हैं, तो वो हम लोग ये फिल्टर्स यूज कर सकते हैं और उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही सारे सेटिंग्स है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, वार्मथ, उसका
अगर टिंट मुझे देना है, अभी अगर सपोज लव स्टोरी है तो मैं उसको रेड टिंट तक दे सकता हूँ, या ब्लू वार्म कूल, वैसे मैं अपने फुटेजेस के साथ उसको ट्राई कर सकता हूँ. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अभी ये सारे टूल्स के साथ यू स्टार्ट प्लेइंग, बट स्टार्ट एडिटिंग द बेसिक टूल्स, जैसे ये ट्रिम करके फुटेज क्लब करना, कैनवा यूज करके आपका कवर बनाना. अब जब आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है सपोज, ठीक है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्लस बटन एंड ऐड अ सर्टेन फुटेज टू इट या फोटो टू इट. तो अगर सपोज मैं ये कंचन पुष्प का लोगो, कंचन पुष्प इज अगेन a different company with their logo. So अभी videos में usually watermark होता है, so I can add these logos over here. I'll show you how to do that. Let's see. ठीक है. अगर हमें कुछ टाइपिंग करना है तो there are text effects. ठीक है, टेक्स्ट से भी हम लोग टाइप कर सकते हैं. इस चेंज करना है तो वी क्लिक ऑन द फॉन्ट्स. यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट्स जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो हम लोग चूज कर सकते हैं. देखो ये जो फीचर्स है ना, ये हर वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म में है. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप कुछ ये सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो तो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा. दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी. एनिमेशन इज बेसिकली टू क्रिएट दैट इफेक्ट कि वो टेक्स्ट आपका पॉप कैसे होगा. तो फेड इन हुआ है, तो यहाँ से देखो आपको ये इफेक्ट दिख रहा है कि अमृता ताई अभी लिख कर आ रहा है, या जूम आउट होगा या नहीं. हम लोगों ने जैसे फुटेज में पहले भी यूज किया. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आपके एक प्रोग्राम के साथ. अगर आपका प्रोग्राम आपको ये वन टाइम रहता है, मतलब बेसिकली कि जब आप फर्स्ट आपका वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो आप अगर वो इंटरव्यू सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो और आपने उसके लिए कुछ फॉन्ट और कुछ एनिमेशंस और कुछ स्टाइल अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो हर बार जब आप वो वीडियो करोगे तो आप वही एनिमेशंस और वही चीजें यूज करो, ताकि इट विल कीप मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर्स, और फिर वो रिलेटेबल हो जाएगा. अभी अगर आप रजत शर्मा को देखते हो और आपकी अदालत देखते हो, तो आपको पता है कि वो अदालत का सेटअप है. ठीक है, वहां पे आपको पता है कि वो मुकदमा चला रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी लव दैट, राइट. अगर अर्नब गोस्वामी की मैं बात करूं तो आपको अर्नब गोस्वामी का रिपोर्टिंग याद नहीं होगा, आपको नहीं याद होगा कि उसने वो क्या बोला है कल, लेकिन आपको उसका डायलॉग याद है कि द नेशन वांट्स टू नो. सो ऐसे हमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ वे, कुछ तरीके हमें अपनाने होते हैं, और कुछ सिग्नेचर मोमेंट्स हमें हमारे लिए क्रिएट करने हैं, ताकि हमारा वो एक सिग्नेचर हो जाए. अभी आपका सिग्नेचर या आपका थंबप्रिंट ये आप ही का है, यूनिक है, तो इट हैज टू बी यूनिक टू यू द वे यू आर डूइंग इट. ठीक है, यहाँ से आप और टेक्स्ट में एडिट कर सकते हो. लाइन से आपके अगर नंबर ऑफ लाइंस या मल्टीपल लाइंस है तो उसके स्पेसिंग में आप इसको बढ़ा सकते हो, इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो. ओपेसिटी इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी. कैरेक्टर से आप अपना जो वर्ड एक एक अल्फाबेट के बीच में का जो स्पेस है वो आप बढ़ा सकते हो. ठीक है, तो ये यूजुअली टाइटल्स के लिए यूज किया जाता है. एंड देयर आर सर्टेन मूवीज जहाँ पे ऐसे आप शुरू करोगे एंड देन इट कम्स डाउन टू कैरेक्टर रिड्यूसेस. तो वैसे सारे एनिमेशंस आप यूज कर सकते हो. जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो टाइमलाइन के ऊपर एक लेयर बन के आ जाता है, राइट. अब मैं इस लेयर को अगर सिलेक्ट करूं तो आई कैन मूव इट. तो मेरे को यहाँ से सपोज उसको बढ़ा करना है तो आई कैन मतलब मेक इट बिगर और मेक इट स्मॉलर, डिपेंडिंग कि मुझे ये फुटेज में एग्जैक्टली इस मोमेंट पे ये टेक्स्ट आना चाहिए. तो दैट ऑल्सो आई कैन डू. आई कैन जस्ट टेक दिस. ये फोन पे आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है उसको एंड देन मूव करना है, तो वो आपका टेक्स्ट वहां पे आ जाएगा. ठीक है, तो अभी इफ आई प्ले नाउ यू विल सी कि वो एनिमेशन होगा एंड देन द टेक्स्ट विल पॉप अप. सी, अगर मुझे ये टेक्स्ट को और बढ़ा के रखना है तो आई कैन जस्ट इंक्रीज द लेंथ. नाउ दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर, जो बेस्ट सूट करेगा प्रोजेक्ट को उस हिसाब से वी कैन डू दैट. ओके, आई थिंक आई नीड टू चेंज द फिल्टर टू ठीक है. सेम अभी स्टिकर्स में हम लोग
काफी इमोजीज हो गए, जिप्स हो गए, ये सारी चीजें हम लोग हमारे फुटेजेस में ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमें अब हमारा वाटरमार्क ऐड करना है, अगर हमें हमारा लोगो ऐड करना है, तो वील जस्ट गो टू स्टिकर एंड इंपोर्ट अ फोटो। तो हम लोगों ने जो पिक्सआर्ट में स्टिकर्स बनाए या हमारे पास एग्जिस्टिंग जो पीएनजी फॉर्मेट में है, ठीक है, अभी इमेजेस के भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, जैसे जेपैग हो गया, पीएनजी हो गया। तो पीएनजी में यूजुअली बैकग्राउंड नहीं होता है, तो आप अभी देख रहे हो कि ये पीएनजी इमेज यहाँ पर आ चुका है एंड आई कैन जस्ट प्लेस इट टू द टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं उसको रोटेट करना है या ऐसे कुछ करना है तो प्लेस इट। तो ये मेरा लोगो हो गया, ये मेरा वाटरमार्क हो गया मेरे वीडियो में, राइट। आई कैन जस्ट हिट द आइकॉन एंड इट्स डन। अब मुझे ये लोगो थ्रू आउट चाहिए, तो फिर आई विल जस्ट एक्सपांड यूजिंग दीज एरो कीज, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में हर एक को कलर दिया गया है। सो फॉर टेक्स्ट आपको ब्लू दिखेगा, लोगो के लिए में भी, इमेज के लिए ग्रीन दिखेगा, ऐसे हर एक एनिमेशन के लिए आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। इवन एक एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो या इमेज हो, आप उन सबको भी एनिमेट कर सकते हो। लाइक आई कैन एनिमेट दिस स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। सो नाउ यू कैन सी, जब मैं ये वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करूंगा, लोगो लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट में आएगा। तो ऐसे सर्टेन एनिमेशंस यू कैन डू, you can I mean there are many things you can try and feature. Okay, let's go back to the footage. तो अभी आपने देखा कि लोगो का लेयर कैसे ऐड करना है, ठीक है, इमेज का लेयर कैसे ऐड करना है। अगर आपको इस वीडियो में बात करते हुए कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है, मतलब आपको सपोज कुछ वॉइस ओवर देना है, तो यू विल जस्ट हिट द रिकॉर्ड बटन, अलाउ, और यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग टैप करोगे तो वो वहां पे उस पर्टिकुलर जहां से भी आपने अपना कर्सर रखा था वहां से रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। तो ये इट विल गिव यू वॉइस ओवर के लिए एक ऑप्शन जहां से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन दैट रिकॉर्डिंग हैज कम हियर। अब मुझे ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग प्ले करते वक्त मुझे इस फुटेज का वॉल्यूम कम कर देना है, तो मैं यहाँ से इसको पहले करूंगा स्प्लिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, सेम मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे भी इसको स्प्लिट किया। तो अभी ये सेक्शन मेरा डिफरेंट हो गया है, आप देख रहे हो, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। अब यहाँ के सेक्शन पे आके मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा और वॉल्यूम उसका 0 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन में नॉर्मल ऑडियो चलेगा और इस सेक्शन में वो ये ऑडियो पिक करेगा जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड ट्रांजिशंस, ठीक है। अभी तक हमने इफेक्ट्स देखा, हमने फिल्टर देखा, हमने टाइमलाइन देखा, सारे ट्रिम करने की कोशिश की हम लोगों ने। अभी देयर इज अ थिंग कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस आर बेसिकली, आप जैसे पेज टर्न करते हो ना, ट्रांजिशन का यूज क्या है, आप एक फुटेज से दूसरे फुटेज में जा रहे हो, तब आपको ना ऑडियंस को एक रजिस्ट्री करना होता है, मतलब ऑडियंस के आंखों में वो रजिस्टर, माइंड में रजिस्टर होना चाहिए कि हम लोग दूसरे इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो वो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए हम लोग ट्रांजिशंस यूज करते हैं। तो ये ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, मिक्स, फेड, आपको यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, एक थंबनेल दिख रहा है कि वो कैसे मूव कर रहा है। तो ये मूव डाउन कर रहा है आपके फुटेजेस को, ये मूव लेफ्ट कर रहा है। फेड इज बेसिकली अ स्मूथ फेड टू अ डिफरेंट फुटेज। तो ऐसे बहुत सारे आपके ट्रांजिशंस हैं। जो प्रो वाले हैं वो हमें अवॉइड करने हैं बिकॉज दे आर पेड एंड दे आर प्रीमियम, हम लोग वो यूज नहीं करेंगे। मेजरली देयर आर 3 to 4 transitions that are used widely. One is fade, ठीक है, दूसरा है क्रॉस डिसॉल्व। मैं आपको प्रीमियर प्रो में भी ये सारी चीजें करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट फेड ट्राई करते हैं फेड। तो हम लोगों ने फेड यूज किया, अब आप फुटेज देखना ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आई एम हिटिंग द प्ले बटन। सो आपने अभी देखा क्या हुआ, हेलो, सॉरी कुछ बोला, ठीक है। सो आपने देखा ये फेड इफेक्ट कैसे काम किया, Yes, sir. या गुड। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग और ट्रांजिशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप अभी ये आपको वीडियो एडिटिंग का
बेसिक टूल्स तो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है. देयर आर अदर टूल्स आल्सो व्हिच यू कैन यूज, बट आई थिंक इतने से आप पहले ट्राई करो, आपका फुटेज, आपकी स्टोरी बनाओ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू Adobe Premiere Pro. Sir, हाँ, can I request you something? yeah, tell me. अगर आपका ऑलरेडी कोई छोटा वीडियो होगा 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, अगर आप दिखा पाओ जैसे कि रॉ फुटेज क्या थी और आपने एडिट करके उसको कैसे बनाया, इफ पॉसिबल. Why not? I'll just open a project. मैं actually फोन वाला भी नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज फोन का मेरे पास यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, बट डेफिनेटली लेट मी ट्राई एंड शो यू समथिंग. ठीक है, तो अभी विजडम हाई सबको पता है. विजडम हाई इज माय क्लाइंट. आई डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर देम. तो बेसिकली ये एक वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किया था. मैंने क्या किया, सारे पेरेंट्स को बोला कि आप अपना अपना फुटेज सेंड करो, ठीक है. तो आप ये टाइमलाइन आप देख रहे हो, ठीक है. ये जो है मेरा विंडो ऑन द लेफ्ट जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे मेरे सारे फुटेजेस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. ये मेरा टाइमलाइन सीक्वेंस है जहाँ पे चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं. एवरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैज दीज टूल्स. हमें बस अभी ये प्रीमियर प्रो इज वेरी एडवांस इन दैट. मैं आपको ये सारे पहले ये वीडियो दिखाता हूँ 30 सेकेंड्स का, जस्ट वॉच दैट. आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा. तो अभी यही सेम वीडियो हम लोगों ने, मैंने इसमें एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको यू कट में गया मैं, और यू कट में मैंने उसमें टेक्सटिंग किया है. आपको वो जस्ट आपको फोटो. काही लोकांना आवाज आला नसेल ते यामुळे, बिकॉज गुगल मीट जेव्हा चालू असतं तेव्हा लोकल फाईल्सचा व्हॉइस नाही येत. सो मी सरांना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी जो व्हिडिओ आता दाखवला तो आपल्याला ते आपल्या ग्रुपवर शेअर करतील. तर अभी ये वीडियो वापस देखो. ये जो टेक्सटिंग है ना, ये सारा टेक्सटिंग मैंने यूकट ऐप पे किया है. प्लस थोड़ा कलर करेक्शन, और आप ये जो इफेक्ट देख रहे हो ना, देयर आर सम पार्टिकल्स फ्लाइंग, तो वो सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं एज ओवरलेस. ठीक है, आई विल जस्ट कॉपी दिस पेस्ट. बेसिकली बहुत सारा ट्रायल एंड एरर है, लर्न दीज थिंग्स. अभी यहाँ पे जैसे एक एक फुटेज मेरे पास आया, ठीक है. मैं ये सारी चीजें बंद कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा कि हो क्या रहा है. तो ये एक एक जैसे ये सेक्शन दिख रहा है आपको, तो ये एक एक फुटेज था जो मेरे पास आया. फिर उसको मैंने ट्रिम किया मेरे हिसाब से कि जो मुझे कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए, क्या एक्सप्रेशन चाहिए, वो सारी चीजें मैंने उसमें एडिट की. फिर उसके बाद हम लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, जैसे हम लोगों ने फोन में किया सेम. ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कुछ उसमें इफेक्ट ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके उसके स्पीड और ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने देखो उसका स्पीड 148 किया है परसेंटेज, दैट इज आई हैव इंक्रीज द स्पीड. अगर मैं 100 करूंगा उसको तो वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगा. Now let's play this video. ठीक है, I can reduce it further more to let's say 10%. तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा. Now you can see the footage, वो एक एक फ्रेम करके जा रहा है, राइट. तो ऐसे आपको बहुत सारा
ट्रायल एंड एरर के बाद ही समझेगा कि यू नो व्हाट यू कैन यूज, व्हाट यू कैन, हाउ दैट फुटेज शुड वर्क. अभी कभी कभी स्लो मोशन हम लोग करते हैं टू एस्टैब्लिश, एंड देन फास्ट करते हैं जहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं. ठीक है. So I have a question. I think I have, yes. Like you said कि Premiere में edit करने के बाद you went to UCut. So मतलब वो like Premiere से export करने के बाद UCut में जाके फिर से export किया तो quality drop होती होगी ना? क्वालिटी एक्चुअली ड्रॉप नहीं हुई, उल्टा क्वालिटी इंक्रीज हो गई. बिकॉज जो फुटेजेस मुझे पेरेंट्स ने दिए थे वो थे व्हाट्सएप पे. ठीक है. और अगर मैं रील वाला अगर मुझे एडिट करना होता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे प्रीमियर प्रो में देयर इज नो ऑप्शन टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विथ दैट साइज. सो आई शो वेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यहाँ पे अभी सपोज मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया. ठीक है. यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस के लिए ऑप्शन नहीं है 9:16 का. यानी वो पर्टिकुलर इमेज, मतलब अगर मेरे को वर्टिकल चाहिए तो मेरे पास वर्टिकल का ऑप्शन ही नहीं है. तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक इमेज लेते हैं, या ये जो फुटेज है अगर हम लोग वो फुटेज लेते हैं, या मैं ये फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो फुटेज से मैं सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ, तो न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, तो तब मुझे वो फ्रेम वैसा का वैसा मिलता है. But you could go from here ना, आप आगे फाइल एडिट दिख रहा है उधर सीक्वेंस सेटिंग में. हाँ वैसे भी कर सकते हैं, डू दैट. सीक्वेंस सेटिंग्स में उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, बट दिस इज वेरी इजी. तो Also, you can make a new preset of sequence, I guess. हाँ ऊपर Yes, सीक्वेंस yeah. सेटिंग में जाके Definitely. रेजोल्यूशन we can change ना. Right. We can, but this is more about being phone पे edit करने के लिए. इसमें तो there are so many options to do so many things. Just hit auto and your footage is color corrected, right? So there are so many things which we can do in Adobe, like the premium versions. But ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है in real life जहाँ हमें edit करना है. अगर हाथ हमारा बहुत अच्छा बैठा है After Effects और Premiere Pro में, then we can definitely edit. But this lecture's focus is more upon people who want to, you know, just do it on their phones. So Right. let's Absolutely. come back. Yes, correct. So let's come back to the cut. I think we just वही export का ही main topic रह गया है, that I'll cover. Then we can go to Q&A. आपका प्रोजेक्ट हमेशा सेव हो जाता है डेट से, तो आप वही प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो. ठीक है. अब मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने एडिट तो कर लिया, अब मैं क्वालिटी के हिसाब से उसको सेव कर सकता हूँ. व्हेन आई हिट द सेव बटन, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं. अब यूकट का बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट जिस वीडियो में शॉट किया है उसी में वो साइज वहां पे लेता है. तो अगर आपका फुटेज 480p में शूट हुआ है तो वो 480p ही रखेगा, वो आपको उससे ज्यादा एडवांस जाने का ऑप्शन नहीं देगा. बट उससे कम आप कर सकते हो, लाइक 720p 640p. तो यहाँ पे अगर मुझे YouTube पे या कहीं पे भी अपलोड करना है तो आई विल गो विद 1080p ओनली. क्वालिटी भी आई कैन डिटरमाइन, और क्वालिटी के साथ साथ मुझे यहाँ पे साइज भी आ रहा है. दिस इज ऑलमोस्ट 1.2 GB. This is 900 MB. This is 629 MB. So also that I can choose right now just to save it quickly. I'm using these settings and I hit save. It ad pop up hoga and it will start converting my video. और यहीं से भी I can share to different platforms. I would not suggest doing that. Go to File Manager and then upload your video to wherever you want. So yeah, that's just it, and that's so easy to edit on your phone. किसी और को कोई questions हैं in terms of UCut? Yes.
कोणाला काही डाऊट्स असेल तर विचारून घ्या आणि लीव नका, अटेंडन्स घ्यायची आहे. डोंट लीव. आणि इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स प्लीज No, sir. सबको एप्लीकेशन समझा है? Yes, sir. That's great. That's great. तो अभी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है मेरे पास, and only after doing this assignment on a particular mobile application you guys will pass. And trust me, I will know कि ये मोबाइल पे किया है या प्रेजेंट मतलब आपके कोई एडोबी या ऐसे सॉफ्टवेयर पे किया है, बिकॉज जो फिनिश आपको मोबाइल पे मिलेगा दैट इज नॉट रियली अप टू द मार्क. सो ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अचीव दैट फिनिश ऑन मोबाइल इटसेल्फ. आपको करना क्या होगा, चूज एनी टॉपिक. आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो एडिट करना है. ठीक है, जर्नलिज्म का हमारा सब्जेक्ट है, तो आई वुड लाइक यू गाइज टू डू अ रिपोर्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आप अपने हिसाब से चूज करो, अपने फील्ड के हिसाब से चूज करो. इट कैन बी अ क्राइम स्टोरी, इट कैन बी अ सेलिब्रिटी स्टोरी, इट कैन बी अ रिसेंट या करंट न्यूज. आई वांट यू टू रिकॉर्ड इट. आप रिकॉर्ड भी कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को ही बोलते हुए रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड दैट सिनेरियो या सिचुएशन एंड देन टेक इट टू दैट सॉफ्टवेयर एंड ऐड इमेजेस एंड फुटेजेस ऑन दैट वीडियो. ठीक है, अभी कभी कभी हम लोग एक कट अवे शॉट भी यूज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ से मुझे आवाज जो है वो सेम रखनी है, लेकिन मुझे व्यू किसी और का दिखाना है, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा. मैं यहाँ से स्प्लिट करूंगा और उस पॉइंट तक लेकर जाऊंगा जहां तक मुझे वापस कहीं और का कट दिखाना है. स्प्लिट करके मैं यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पे सिर्फ वो पर्टिकुलर इमेज में ऐड करूंगा. यहाँ से इमेज ऐड करने के लिए भी आई कैन गो टू द स्टिकर ऑप्शन एंड आई कैन प्लेस दैट इमेज ओवर देयर. ठीक है, या प्लस करेंगे तो हम लोग फुटेज या फोटो ऐड कर सकते हैं. लेट्स सी ये फोटो कहाँ आ रहा है. या तो अभी ये उसके आगे आ गया है फोटो एक्चुअली, बट इफ आई गो टू द स्टिकर ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट एंड ऐड दैट फोटो, इट विल कम ऑन टॉप ऑफ द फुटेज. ठीक है, ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये अभी कट अवे शॉट्स में हम लोग इसको लेकर आ सकते हैं. Sir, your shared screen is not visible. ओह, तो पहले बोलना चाहिए ना. रुक जा. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So I will hit that project again. Yeah. So I was talking about cutaway shots. ठीक है, कटअवे शॉट बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा फुटेज है जहां पे मैं एक प्रोडक्ट की बात कर, ठीक है, आपने बहुत सारा ये टेलीविजन पे कमर्शियल्स देखा होगा जहाँ पे वो ऐप क्रंचिंग मशीन या पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, मॉप बेचते हैं, फोन्स बेचते हैं. तो लेट्स सपोज वाटर बॉटल. तो अगर मैंने फुटेज शूट किया है बात करते हुए अपने बारे में, एंड देन आई कट अवे टू दिस वाटर बॉटल जहाँ पे मैंने वाटर बॉटल के फुटेजेस या फोटोज क्लिक करके मैंने उसको शूट किया है, एंड आई वांट टू ऐड देम ओवर हियर. मैं वापस स्टिकर से ही करूंगा, मैं स्टिकर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा एंड दैट फोटो इज एडेड. तो अभी ये फ्लावर है, तो मेरे को फ्लावर का फोटो ऐड करना है, तो वैसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. सेम जैसे मैंने कहा था, हम लोग उसका साइज कितना हमें कहाँ कौन से ड्यूरेशन पे लेकर आना है वहां तक हम लोग रख सकते हैं. उसको हम एनिमेट कर सकते हैं कि हमें जूम इन करना है, एंड that's how you just add a photo over your footage, basically creating a new layer. There are certain limitations to what definitely you can do and you cannot do on a phone software, but it is not limited. आपको मल्टीपल एप्स यूज कर करके आपके फुटेजेस बनाने होते हैं, एंड that's how you can get a good end result. So that's it. Anyone has any questions? Assignment आपको समझा, 2 to 3 minutes. Use everything, right? Use effects, use filters, use transitions. Sir, I have a question. Investigation. Yes, Sagar. Any report. But yeah, let's do that. Hello. Yes, Sagar, you were saying something.
सर जो अपन टेलीग्राम या इस पे कोई वीडियोस आता है जिसका एमबी बहुत कम होता है, मतलब साइज बहुत कम होता है, 1.5 या 2 एमबी तक होता है, प्रोबेबली 3 या 4 एमबी बहुत से ज्यादा, लेकिन उसका जो क्लियरिटी जो होता है, उसका जो एचडी क्वालिटी आता है वो बहुत कम एमबी होता है। कैसे आ पाता है? और हम अगर वैसे ही क्वालिटी का वीडियो अगर एक्सपोर्ट करना चाहे प्रीमियर प्रो या किसी ऐप से, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो अभी वीडियो डायमेंशन मस्ट बी सेट टू 482 ये वर्टिकल वीडियो की साइज है, और ये कोडेक्स है जो 246 है ना, ये सारे कोडेक्स है, MPEG 4 सर 1 मिनट, यस सागर माइक्रोफोन बंद कर। या सी टेलीग्राम का तो टेलीग्राम पे आप हाई फुटेजेस भेज सकते हो, बट एवरीथिंग इज बेसिकली जो कोडेक और मैंने फॉर्मेट की बात की थी वैसे ही है। जब टेलीग्राम पे बहुत सारे जो वीडियोस आते हैं वो उसका जो ऑडियो है वो भी कंप्रेस्ड होता है एक डिफरेंट फॉर्मेट में, ACC फॉर्मेट है जो एप्पल वाला फॉर्मेट है, या आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे MP4 या H264, ये भी कुछ फॉर्मेट्स है। तो ये सारे आप प्रीमियर प्रो से अचीव कर सकते हो व्हेन यू नो हिट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडिया करके यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, उसको आप कोडेक सेट कर सकते हो, बट विथ फोन यू कैन नॉट। विथ फोन राइट नाउ आपके पास सिर्फ MP4 का ही ऑप्शन होगा, या जो वो कोडेक यूज करते हैं। अभी फोन्स बेसिकली DNX 10 यूज करते हैं, तो व्हाट आई मीन। सर उसका एक रीजन है शायद, जो भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप है, तो टेलीग्राम इज क्लाउड बेस्ड ऐप, मतलब आप जो भी उस पर शेयर करते हो उसकी कॉपी क्लाउड पे होती है, और जब आप डाउनलोड करते हो कोई ग्रुप में कुछ चीजें तो वो डाउनलोड तो हो जाती है मोबाइल में, लेकिन until and unless you save to it गैलरी और डाउनलोड्स, वो आपके गैलरी में दिखती नहीं है। ओके सो उसमें इसीलिए टेलीग्राम में कॉम्प्रोमाइज होती नहीं क्वालिटी, लेकिन द सेम डज नॉट अप्लाई टू व्हाट्सएप, बिकॉज whenever you send something on WhatsApp, WhatsApp reduces its quality. So ये डिफरेंस है, वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्ट ऐप है टेलीग्राम, बाकी ये सब नॉर्मल सर्वर बेस्ड, मतलब whenever you send something डायरेक्टली वो जो जिसको आप इंटेंशनली सेंड कर रहे हो उसको ही चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो क्लाउड पे सेव होता है और आपको क्लाउड पर अपलोड करना पड़ता है, क्लाउड से डाउनलोड करना पड़ता है। I mean, WhatsApp as a cloud database only, ठीक है, but Telegram का क्या होता है कि every application will create some cache files in your phone, ठीक है, तो आप तब तक डाउनलोड नहीं कर सकते उन वीडियोस को जब तक आप गैलरी में सेव नहीं करते, तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपके कैचे में या आपके फोन में कहीं ना कहीं स्टोर हो ही रहा होगा। तो इफ यू गो टू योर सेटिंग्स एंड इफ यू गो टू दैट एप्लीकेशन का डेटा ना, यू विल सी कि टेलीग्राम इतना ज्यादा डेटा यूज कर रहा है, डेटा इन द सेंस साइज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इतना साइज यूज कर रहा है। देयर आर सम व्हाट डू यू कॉल दैट स्ट्रक्चर, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट देयर इज एन XML कोड, XML इज अ वेब फॉर्मेट, तो वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख देता है आपके फोन के कैचे में, वो डिपॉजिट कर देता है, ताकि जब भी वो वीडियो प्ले हो आपके डेटा के स्पीड के हिसाब से वो ऑटो रेजोल्यूशन उसका ढूंढता है, एंड देन इट प्लेज योर वीडियो ओवर ऑन टेलीग्राम, ऐसा है। एंड डेफिनेटली हर एप्लीकेशन का एक कंप्रेशन मेथड है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस के कंप्रेशन मेथड दिख रहे होंगे। सो ये जो एप्पल प्रोरेस है, दिस इज अगेन एप्पल स्पेसिफिक कंप्रेशन मेथड। हेलो, हाँ, मेरा ये सवाल था कि जैसे कम MB साइज में बहुत ज्यादा मतलब उसका क्लियरिटी बहुत अच्छा होता है, और कई बार अपन एडोब प्रीमियर प्रो से भी करते हैं 50-60 MB का जो वीडियो बनता है, फिर जाके वो 2-4 MB की वीडियो में उसका क्वालिटी कैसे मिल जाता है, मतलब अगर डाउनलोड करने के बाद भी वो कौन सा फॉर्मेट होता है? कंप्रेशन ही होता है डिपेंडिंग ऑन द पिक्सेल्स। अभी मैं आपको हैंड ब्रेक जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया कंप्रेशन की, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप वीडियो डालोगे ना, अभी मैं यहाँ से ये भी क्लाइंट के लिए वीडियो बना रहा था,
ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो फॉर्मेट है MP4, MKV, वेब एम, ये सारे फॉर्मेट्स और कंप्रेस कर देते हैं। अभी MP4 भी अगर मैंने सेलेक्ट किया तो उसका डायमेंशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब 1920 को अगर मैं रिड्यूस कर दूं बाय हाफ तो वो मुझे वैसे दिखेगा। ठीक है, फिल्टर्स, वीडियोस, ये सारी चीजें मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। और क्वालिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से मैं क्वालिटी भी चेंज कर सकता हूँ। तो लोअर क्वालिटी से बिट रेट चेंज होगा, ऑडियो की क्वालिटी चेंज होगी और उससे ही आपका जो आपका यूज हो रहा है वो चेंज होगा। यहाँ पे देयर आर अगेन मेनी व्हाट यू कॉल दैट टूल्स कि आपको कौन से रेजोल्यूशन चेंज करना है। वेरी 1080p 30 frames per second, ठीक है, ये 720p 30 frames per second, तो इसका कंप्रेशन फास्ट होगा। ठीक है, ये हाई क्वालिटी, जितना आप जाओगे सराउंड, बेसिकली ये सराउंड साउंड के साथ सुपर हाई क्वालिटी में सेव कर रहा है। वेब डिवाइसेस के लिए अगेन डिफरेंट फॉर्मेट, जीमेल के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स। तो ये सारे कंप्रेशन मेथड्स है, आपको बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा इनको समझने के लिए कि एंड्रॉइड का कंप्रेशन मेथड से क्वालिटी कितना आपको मिल रहा है। तो अगर मेरे को सपोज यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फॉर्मेट के हिसाब से मैं बहुत सारी चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी ये ब्लू रे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा क्वालिटी होगी इन द सेंस, क्योंकि मेरे पिक्सल्स कम है, वो क्या करेगा, वही पिक्सल्स को वो एक्सपांड करेगा 4K में। तो मेरे को एक्चुअली दिखेगा कुछ नहीं, बट वो अगर मेरा फुटेज ही 4K में शॉट है तो वो पॉइंट है सेव करके, या तो मेरा अगर जैसा फुटेज है उसी को मैं मैच सोर्स कर देता हूँ हाई बिटरेट, ताकि वो वही फॉर्मेट में सेव हो। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूँ ना, अगर उसको मैं YouTube 1080p रखता हूँ तो मेरा साइज चेंज हो जाता है। अब देख रहे हो ब्लैक बार आ गया साइड में। ठीक है, अगर मैं फोन से शूट कर रहा हूँ वो फिर बाद में मैं ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन में जाके उसको एडिट कर सकता हूँ उसके, बट ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं उसके कि फेसबुक क्वालिटी या फोन, अगर मैं फोन मोबाइल 480p HD वीडियो में सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड फाइल साइज देखो 3 MB हो गया। ये सारे अलग अलग कंप्रेशन मेथड्स हैं यहाँ पे। अगर मैं मैक्सिमम क्वालिटी रेंडर करूंगा तो फिर वो रेंडर के लिए टाइम लेगा, इट विल टेक एवरी फ्रेम एंड पिक्सल to consideration and the quality will be better. फिर सेम ऑडियो के सेटिंग्स आते हैं। अभी ऑडियो में भी ठीक है, ऑडियो में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे AAC एक फॉर्मेट है, MPEG एक फॉर्मेट है, और इसके भी कुछ बिट रेट्स हैं, सैंपल रेट्स। ठीक है, सैंपल रेट से भी क्वालिटी में डिफर करेगा अगर मैं कम करते जाऊँ तो। आपका यूजुअली 320 पिक्सल्स आपके सारे जो 320 आपका सॉफ्टवेयर यूज करता है, स्पॉटिफाई एंड एवरीथिंग। 190 198 ऐसे बिट्स में रहते हैं वो। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट लाइक करो, पहले ये चीजें करो, once you start understanding then you can get into technicalities. आप हैंड ब्रेक यूज करके देखना सागर, आप अगर जो भी फुटेज आप बनाते हो ना, उसको हैंड ब्रेक में डालो, कन्वर्ट करो उसके फ्रेम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, रिड्यूस योर साइज। ओके सर, श्योर। Any other questions, guys? No, sir. No, sir. So essentially this was a webinar and not workshop. मतलब हमारा एम था कि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। अभी आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये सब चीजें कर रहे हैं, प्रोफेशनल होंगे, लेकिन बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता। सो जैसे कि एक बार कोई कंसेप्ट बता दिए, कोई टेक्नोलॉजी बता दी, सो हम एक्सप्लोर करते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्यूरियोसिटी। जैसे जब आप नया लैपटॉप खरीदते हो या फिर स्मार्टफोन खरीदते हो या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप क्यूरियस होते हो, आप चेक करते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। सिमिलरली हमारा एम था कि फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग स्पेसिफिकली आपको बताना है ताकि आप एक्सप्लोर कर सको। और मोबाइल बेस्ड क्यों? बिकॉज बहुत कम बार ऐसा हुआ कि आप कोई ऑफिस में बैठे हो, AC रूम में बैठे हो और आपको कोई असाइनमेंट आएगी और आप कर रहे हो। रेयरली होता है। जब अगर आप प्रॉपर मीडिया प्रोफेशनल बनते हो
तो आपको फील्ड पे जाना होता है, क्विकली कोई फोटो या फिर वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है, पोस्ट करना होता है, बिकॉज मीडिया में टाइम इज एवरीथिंग। जितने कम समय में आप कोई न्यूज ब्रेक करो उतना पॉपुलर होते हो। दैट्स व्हाई वो एम था। अगेन ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत चैलेंजिंग थिंग है, लेकिन अंकित सर डिड सुपर्ब। लास्ट सेम में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को वो कंटेंट राइटिंग के लिए आते थे सैटरडे, तो जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा we'll again invite him, and this was just webinar, not workshop. Next time we will organize workshop, तब सर डेमो भी देंगे और आपको उस टाइम करना भी है। सो लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में अगेन प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हम वर्कशॉप और वो भी ऐसी टेक्निकल चीजों का कंडक्ट नहीं कर रहे फिलहाल। लेकिन आई होप आपको वेबिनार अच्छा लगा। आप जो सर ने फोटो और वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर बताए, आप वो डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो अलग अलग जो फीचर्स है। एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 10 इमेज पर ट्राई करो। सिमिलरली फुटेज, 1 फुटेज, 2 फुटेज, 10 फुटेज पे ट्राई करो ताकि आप सीख सको। अगेन ये जो चीजें है वो एक दिन में 2 दिन में नहीं होती, यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। अगर मैं फोटोशॉप फिर कोरल ड्रॉ फिर प्रीमियर प्रो के बारे में बात करूँ, तो अगर आप जस्ट गूगल पे जाओ और कोई टेक्निक होगी उसके बारे में सर्च करो, तो आपको 10, 15, 20 अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। देयर आर मोर देन 100,000 वीडियोस अवेलेबल। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वही चीज आती है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझेगा। हम आपको डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है वो बताएंगे। सर कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया था उन्होंने, अभी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रहे, एंड ही हैज सेवरल थिंग्स टू शेयर। सिमिलरली जो स्टाफ है वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं समझेगा। सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और करके देखो। इवन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में, फिर भी करके देखो। यू नेवर नो कि वही आपका एक एम बन जाए, वही आपका एक पैशन बन जाए। सो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। नहीं यार, हर जगह ये काम में आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो काम में आ ही जाता है। इवन किसी फ्रेंड का बर्थडे है, छोटा सा वीडियो बनाना है ना, आपके पास 15 मिनट है, तो आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी हो, यू कैन जस्ट एडिट योर फोटोज एंड वीडियोस। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर राइट नाउ। देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक क्विक, एक QUIK करके है जो GoPro वालों का सॉफ्टवेयर है, एंड उसमें तो आप सिर्फ फुटेजेस ऐड कर दो, सेलेक्ट कर दो, एंड इट विल do the templates ready है वहाँ पे। You can select the way, you can create beautiful slideshows also of images and memories. So बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं using many applications. Even अगर आपको story में add करना है Instagram stories के लिए, तो there is an application called Unfold, ठीक है, या even Canva is a good one to get good templates for stories and everything. So start using them for your own photos, for your own editings. तो तब आपको हाथ उसमें आपका pro हो जाओगे, तो definitely I'll just quote one example, like ये रियल लाइफ एग्जांपल है टिकटॉक का। तो जो टिकटॉकर्स थे लोग उनको बहुत ट्रोल करते थे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, लेकिन लेट मी टेल यू दैट वाज द ओनली सॉफ्टवेयर व्हिच रीच टू द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब गाँव में तक पहुंच गया था वो, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी टू यूज। एक छोटा सा वीडियो शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट क्वालिटी लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपको यूट्यूब पे एक चैनल खोलना है तो बहुत टाइम लगता है टू बिकम फेमस और टू गैदर व्हाट वी कैन से व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पे टिकटॉक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए डोंट ट्रोल एनीवन। वो एटलीस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो ट्राई तो कर रहे हैं। तो उसके बाद इंस्टाग्राम ने भी रील्स स्टार्ट किया, ट्विटर ने फ्लीट स्टार्ट किया। सो हर एक प्लेटफॉर्म ने अपना एक स्टार्ट किया, लेकिन टिकटॉक वाज समथिंग व्हिच स्टार्टेड दिस थिंग। Actually, it started with Dubsmash, but Dubsmash से it started creating small audio related videos, act करने लग गए वो, and then suddenly TikTok के पास आइडिया आया कि ना हम लोग इसमें इफेक्ट्स डालें और बहुत सारी चीजें करें, रीमिक्स करें। तो यार आई थिंक रील्स का बेस्ट एडवांटेज या दूसरे सॉफ्टवेयर का बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारे पास
फिल्टर्स ऑलरेडी मिलता है. मतलब हमें क्या होता है कि एडिटिंग में एक एक एलिमेंट बनाना पड़ता है. इवन फोटोग्राफी में एक एक एलिमेंट हमें बनाना पड़ता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम. बट फिल्टर्स का बेस्ट वही है कि आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास शूट करना है विद गुड लाइटिंग. दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू अपलोड योर वीडियोस. And you can even save your whatever filter you use, you can even save them in your gallery and then upload it to a different platform. So it's not necessary to use one particular software. There are multiple softwares out there. Try and explore every one which suits you and which suits your needs the best. It's all about creating your signature, creating your identity, and creating the way you want to capture your audience. उसके लिए भी बहुत से तरीके हैं. हम लोगों ने स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग में देखा था. तो करते रहो वैसी चीजें. Somewhere you will take the type of information you are giving. Is it entertainment? Is it emotional content? It is informational content. उस चीजों के हिसाब से you have to make your videos and categorize them. Write a script first, write a flow first, so you know where what you want to do. Then go and shoot your videos. Okay, I think I've spoken enough for 1.5 hours. So if someone has doubt, please you can ask him. Yeah, you can contact me through email or Instagram, or my number Chaitanya sir will provide it. Just connect whenever you want to. Feel free to brainstorm ideas, want to talk about something, or you're stuck somewhere. कुछ भी हो, कभी भी मैसेज करो, कॉल करो, कोई प्रॉब्लम. Even if someone wants to become a social media manager, or someone wants to do a career in digital marketing, you can ask him, because he's currently doing that. He's in a firm which is dealing clients, and they are doing branding for their clients. They're handling their social media accounts. So he's someone who is equipped with all the knowledge. So those who want to do career in this field, you can ask him. So he'll tell the ground reality. So apart from this, any doubt, if you want to ask, please you can, or we'll end the session. Or just give feedback. How was the session? Please, I want at least 2 to 3 students who will give the feedback. 2 to 3 people who have not spoken yet. Please speak. It was really nice, sir. बहुत नई चीजों के बारे में पता चला, and it was great to have the session with you, sir. Thank you, sir. Yes, Anish, surely. In coming times, we are already planning to do more such sessions. First year students कोणी सांगेल का, कोणी रिव्ह्यू देईल का? अजिंक्य, अनुज, Ayan. Dashing Ayan, can you unmute? How was the session? Kachal, Yash. great session. Welcome. Sanskruti. Okay, they're typing in the chat section. It's okay. So do you Thank carry you, on? Hi, Yash. ग्रेट सर. सेशन थैंक सर. यू सर. बहुत इन्फॉर्मेशन मिली सर. Thank you. Okay. थैंक यू वेरी मच सर. अगर कोई थैंक यू सर. सर अगर कोई एडिटिंग का प्रॉब्लम आता हो तो मैं आपको मैसेज करूंगा सर इंस्टाग्राम पर. Definitely, Yash. कभी भी मैसेज. So सर ने एक असाइनमेंट दी थी आपको, 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है, उसको एडिट करना है. सो ये असाइनमेंट सबके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों के लिए मैं अभी थोड़ी देर में क्लासरूम पे एक असाइनमेंट बनाऊंगा. सो कल तक प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट, शूट अ वीडियो एंड एडिट. कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो सभी सर ने बताया, या फिर YouCut यूज करो जो सर ने जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, इंस्टॉल करो, एडिट करके देखो. Okay. Thank you so much, Ankit sir. I, on behalf of the Department of Bachelor of Vocation in Mass Media and KTGM College, thank you. Want to thank you,
and I hope we can connect and do more such sessions. And definitely, when the lockdown ends and college reopens, we'll do this activity in our college laboratory, so students will understand better. Sure. Okay. Happy to do that. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, ma'am, Vishaka ma'am.